dear students, welcome to IMS Gate Academy. Today, Saket Parik with us. He has secured All India rank 4 in PI branch and 9090 in mechanical branch. So first of all, many congratulations, Saket. Thank you so much, sir. Thank you so much. So my first question to you, Saket, just tell us about your preparation journey. Like in which year you have started the gate preparation, in which year you have completed your BTech, everything in detail. Please explain to our future gate aspirants. Yes, sir. Sir, so I am an NIT Jalandhar student of batch 2017 to 2021. Okay. And I started my gate journey in 2021 itself. Wonderful. So before the onset of Corona, I started my journey, and I basically started journey from YouTube videos and my college professors and books and all. No coaching, I did no coaching so far in my final year. Then Corona came and we all came home. तो वहां पर मैं सर एकदम पॉज सा आ गया था. तो 2021 में एकदम पॉज लग गया था. फिर 2021 का जब एग्जाम हुआ गेट का, तो मेरा कट ऑफ भी उसमें क्लियर नहीं था. Then in 2022 I did preparation and I secured All India rank 1327. Because सर उस साल क्या हुआ पता नहीं, पेपर वाले दिन कुछ तो हो गया और वो बिगड़ गया. But then I did it again और इस साल I secured a good rank, which is rank 4th. Introduction. It's a very proud moment for us also. It's a All India rank 4, single digit rank, and double digit rank is also very important in mechanical. So how IMS Gate Academy helps you in this journey? Sir, without IMS Gate Academy, I don't think it would have been possible. So in the earlier onset of my preparation, I started watching the YouTube videos where IMS Gate Academy has uploaded full subject detailed with question and all explanation playlist of different subjects. So I started with fluid mechanics, then I did thermodynamics, and so on. I did few subjects. Then at later stages, I purchased the test series of IMS Gate Academy and recorded lessons of IMS Gate Academy, and that also helped me very much during the course of preparation. Very nice, very nice. So I think in the Corona time, in the pandemic, you have enjoyed the recorded classes online. In an online manner, you have prepared you. Yes, sir. Definitely. Perfect. So, Saket, my next question to you. Generally, students feel very nervous in the examination hall. As you told that in 21, you also faced the same. So Yes. This time in 23, what was your mindset? What was your strategy कि जो मैंने पिछली बार गलती किया वो मैं इस बार नहीं करने वाला हूँ. So क्या कुछ स्पेशल सोच के गए थे इस बार? 3 घंटे कैसे मैनेज किया आपने? क्या Yes, आपने sir. एप्टीट्यूड पार्ट पहले किया या टेक्निकल? सर मैंने पहले एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया. अच्छा. और जितना मैंने टेस्ट सीरीज दिया था उससे मुझे ये चीज क्लियर हो गई थी कि आपका पेपर 45 मिनट्स टू 1 आवर पहले पूरा हो जाना चाहिए एक बार. तो मेरा पेपर पीआई वाला पेपर मेरा 80 मिनट्स पहले पूरा हो गया था सर. ओके. और देन आई रीडिड द पेपर अगेन एंड अगेन ट्वाइस. तो काफी टाइम इंटरवल था, काफी एकदम पीसफुल माइंडसेट से. तो एक बार जब आप दोबारा गो थ्रू करते हो क्वेश्चंस, तो कई बार होता है कि आपके फर्स्ट टाइम में ना आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन में आप वर्ड पढ़ना भूल गए. लेकिन वो चीज ना, जब आप जैसे आप कुछ क्वेश्चन जो बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो उसको आप मार्क करते हुए चले जाओ, चाहे आपका आंसर आ गया उसको भी आप मार्क करके चले जाओ कि अगर लास्ट में टाइम रहता है तो मैं इसको एक बार वापस गो थ्रू कर लूंगा फास्ट. तो वो गो थ्रू करने में आपके आराम से 4-5 नंबर जो नेगेटिव होते वो आराम से बच जाएंगे. फर्स्ट थिंग ये. दूसरा, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है. आपको 15 सेकंड 30 सेकंड में समझ आ जाना चाहिए कि वो सवाल आपके करने लायक है कि नहीं है. फर्स्ट 15 सेकंड्स में आपको लगता है कि ये मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ. और फिर जब एक बार पूरा पेपर हो जाएगा तब आप दोबारा उन सब चीजों को करो. तो ये छोड़ने वाली जो टेक्निक है ना सर, ये काफी मेजरली हेल्पफुल रहती है. सो ऐसा बाकी सक्सेस स्टोरी में भी हमने देखा, टॉपर्स ने ये बात बोला है कि पूरे सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस में मत अटेम्प्ट करो, एक बार फर्स्ट 1 आवर के अंदर सारे क्वेश्चन को टच करके आओ, एटलीस्ट देख के आओ कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पहले अटेम्प्ट में हो जा रहे हैं. तो अगर आपने फर्स्ट 1 आवर के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया जो क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए इजी है या आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हो, तो फर्स्ट 1 आवर में काफी कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं. और उसके बाद आपके पास जैसा आपने बताया कि लास्ट 30 मिनट, लास्ट 40 मिनट, इवन पीआई में तो 80 मिनट सफिशिएंट टाइम होता है रिव्यू के लिए. जो क्वेश्चंस लेंथी है या जो जिसमें आप थोड़ा बहुत डाउट है कहीं, तो उनके लिए आप प्रॉपर टाइम दे सकते. वेरी गुड. यस सर. सो साकेत, वन मोर थिंग. Nowadays, as you know that after Gate 21, IIT Bombay has we can say that
announced that GATE 23 third year students are also eligible to write the GATE exam. So do you think that whoever will write the GATE 24-25 exam, they should prepare early, even in the engineering second year, third year? It is definitely Yes, an advantage for them. सर दिस इज डेफिनेटली द बिगेस्ट एडवांटेज दैट दे हैव, बिकॉज हमारे टाइम पर में ये एडवांटेज नहीं था। दो चीजें सर, एक तो आपको पहले अवेलेबिलिटी, पहले थर्ड ईयर तक बच्चों को पता ही नहीं होता था गेट करना, बच्चे सोचते कि हाँ ठीक है फाइनल ईयर में आएगा तो लास्ट ईयर में कर So लेंगे। जनरली वो ड्रॉप करते थे 2 साल 3 साल, और अब उनको टाइम सेव कर सकते हैं। करेक्ट। और सर उस टाइम पर में इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीजों को लेकर के, उन्होंने यूट्यूब पे डाला हुआ था। लेकिन अब जैसे IMS गेट अकेडमी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा है, तो वो कोरोना में उस टाइम पर में ये चीज काफी हेल्पफुल है। अगर आप थर्ड ईयर से शुरू करते हैं, सेकंड ईयर से शुरू करते हैं, तो फाइनल ईयर तक तो आप आराम से निकाल लेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। एक और एडवांटेज है रिकॉर्डेड सेशंस का, कि अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आप स्पीड फास्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी यू कैन स्टडी। आपको लग रहा है कि स्पीड को 1.25 करना है, 1.5 करना है, यू कैन मैनेज एंड यू कैन रिवाइज आल्सो। करेक्ट तो कई बार क्या होता है कि अपन जोन आउट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो अब क्लासरूम में तो वो चीज जोन आउट हो गए तो निकल गई वो चीज, लेकिन रिकॉर्डेड में आप वापस जा सकते हो पीछे। वापस जा सकते हैं, ये बेस्ट एडवांटेज है। कभी कभी सेपरेट हो जाते हैं, कभी हाँ, कभी कंटिन्यूस जब 9 आवर का क्लास होता है तो कभी कभी बच्चा गैप में वो चीज स्किप कर जाता है, वो कभी जोन में चला जाता है, सेचुरेट हो जाता है। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि जनरली जब बच्चा इंजीनियरिंग स्टार्ट करता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उसको ऐसा लगता है कि गेट इज अ टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम, आई कांट क्रैक द गेट एग्जाम, क्या गेट के लिए तो 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ एक मिथ बना हुआ है, तो डू यू थिंक दैट कि ऐसा होता है, या अगर एक सिंसियर स्टूडेंट 5 से 6 घंटा भी डेली दे दे, अगर एक साल तक, तो आराम से गेट क्रैक कर सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? बिल्कुल सर, कंसिस्टेंसी इज द की। कि आपको एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर जितना पढ़ाई किया उतना इस साल नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एक पूरा कोर्स गो थ्रू था, तो इस साल मुझे उन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करना था बस। तो मैं रिवीजन उनको पे आपने ज्यादा फोकस किया? हाँ, रिविजन पे मेरा मोस्टली फोकस था, तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से रही। दूसरा, आप टाइम नोट करके चलो अपना कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हो, और ये तो कॉन्टिन्यूस आपका ट्राई रहना चाहिए कि वो बढ़े 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 बढ़े। तो जैसे मैं एग्जैक्ट अपने टाइम नोट करता था कि मैं कितना घंटा पढ़ा हूँ। बाय एग्जैक्ट आई मीन कि मैं एकदम अगर किसी से बात करने के लिए भी ध्यान हटा रहा हूँ बुक से, तो मैं टाइम क्लोज कर देता था। तो लास्ट तक आते आते मैं उसको एकदम खींच के 7 आवर्स लेके आ पाया था, जबकि आइडियल टाइम 10 आवर्स होना चाहिए, लेकिन 7 आवर्स लाने पर में भी काम हो गया था। और मैं कहता हूँ कि 5 आवर्स में भी हो जाएगा अगर आप फर्स्ट डे से 5 आवर्स पढ़ेंगे। हाँ, फर्स्ट डे से 5 आवर्स पढ़ते हो तो 5 घंटे आपको डेली एफर्ट करना है। आप अगर गैप कर दोगे बीच में 3 दिन 5 दिन का, तो फिर हो सकता है आप वो मोमेंटम छोड़ दो पूरा स्टडी का। तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप टाइम पर लगा के काम करो, सो दैट आप इफेक्टिवली इवेल्युएट कर सकते हो कि आपका आज दिन भर का इफेक्टिव जो स्टडी आवर्स है वो कितना रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम बुक के सामने रहते हैं और हमारा ध्यान कहीं मोबाइल में है, कभी कहाँ है, तो हमको लगता है कि हम तो 9 घंटे पढ़ रहे हैं, बट अगर इफेक्टिवली स्टडी आवर देखा जाए तो 4-5 घंटे ही आपने पढ़ा होता है। यस सर। चलो करेक्ट। तो एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, जैसा आपने बोला अभी कि टेस्ट सीरीज जब आपने परचेज किया, तो क्या आपका स्ट्रेटजी था कि जब आप रिकॉर्डेड सेशन में सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे, एग्जांपल आपने टॉम कंप्लीट किया, तो आफ्टर दैट क्या आप सब्जेक्ट टेस्ट के लिए अपियर होते थे, या मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, क्या आपका वो माइंडसेट था? यस सर, बेसिक स्ट्रेटेजी यही है कि आप सबसे पहले लेक्चर देख के नोट्स प्रिपेयर करें। नोट्स प्रिपेयर करके आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको एकदम अच्छे से लगा ले, एकदम पूरा गो थ्रू कर ले, और उसके बाद आप ना सब्जेक्ट वाली जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज है 2 सेक्शन में होती है, आप उन 2 सेक्शन में उनको दें। और फिर उसके बाद में जब एक बार आपके 2-3 सब्जेक्ट हो जाते हैं जो सेम जॉनरे में आते हैं, जैसे कि आपका सोम हो गया, डिजाइन हो गया, तो एक उनका क्लब टेस्ट सीरीज होती है, तो वो मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज आप दे लीजिए। फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट वगैरह है, तो 15 से 20 मिनिमम मॉक टेस्ट आपको देने हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था मॉक टेस्ट में? फिर आप इवेलुएट करते थे कि कितना मिस्टेक हुआ और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाया? यस सर, लास्ट का जो मंथ था उसमें मैंने पूरा फुल सिलेबस दिया है, और मेरा पूरा एक पैटर्न ये रहता था कि इस बार जैसे मैकेनिकल का पेपर और पीआई का पेपर दोनों ही आफ्टरनून शिफ्ट में थे, तो मैंने अपना पूरा टाइम टेबल उसी हिसाब से मैनेज कर लिया था कि मैं सुबह जल्दी उठता था, फिर सुबह मैं पढ़ करके दिन में 1 घंटे का नैप लेता था, और फिर जब एग्जाम होता था उससे पहले मैं एकदम फ्रेश रहता था, और फिर मैं पूरा 3 घंटे का पेपर
वो 1 घंटे का नैप जो आपने बोला ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप लोग अपने आप को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करो कि वो जो 1 घंटे का नैप है ना, वो जब लेके आप उठते हो, अगेन आप एनर्जेटिक फील करते हो। और अगर आपने वो 1 घंटे का नैप नहीं लिया ना, तो आप 3 आवर में कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, आप यस सेचुरेट सर। हो जाओगे और आप हैंग हो जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा कि कब आपने 10 मिनट उड़ा दिए बीच यस में। सर। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपका एग्जाम 4 या 5 को रहा होगा, 4 या 5 को, है ना, फोर्थ को। 4 को था, तो जस्ट बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम क्या क्या आपका रूटीन था? क्या आप उस समय पढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, या बड़ा चिल कर रहे थे? क्या था आपका अवस्था? सर मैंने 31 दिसंबर को लास्ट क्वेश्चन मैंने 31 दिसंबर को लगाया था। 31 उसके जैन को? 31, हाँ जैन को, सॉरी जैन जैन, करेक्ट हाँ करेक्ट। 31 जैन को मैंने लास्ट क्वेश्चन लगाया था। उसके बाद मेरा सिंपल सा था कि अब मुझे जितना भी मैंने फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई है, जितना भी मैंने हाँ, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टेक की कॉपीज बनाई हुई है, उसको मैं एकदम आराम से, कोई लोड नहीं कि हाँ ठीक है गो थ्रू कर लिया फिर घुमाया फिर गो थ्रू कर लिया, एकदम इजीली। और फिर मैंने यही किया सर 3 दिन, और फिर 4th डे में पेपर देके आ गया। perfect, perfect. बिल्कुल लोड नहीं लेना है मतलब। Very nice, very nice. So a very important point that each and every GATE aspirant should note, that just before 1 or 2 days of your actual exam, you should not study so much hard. है ना? You just need to make your timetable like that कि you are just revising your short note, your formula sheet. But you need to make sure that before that you have made that formula यस sheet or यस सर, एग्जैक्टली। और दिस शॉर्ट नोट्स, बिकॉज अगर आपके पास शॉर्ट नोट होंगे ही नहीं, तो आप 2 दिन पहले क्या रिवाइज करोगे? तो आपका ये प्रिपरेशन टाइम के अंदर ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप पढ़ रहे हो, आप साथ साथ में क्लासरूम नोट्स बनाओ। और जब आप रिविजन कर रहे हो तो अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट बनाओ जस्ट बिफोर 72 आवर ऑफ एक्चुअल एग्जाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, फॉर्मूला शीट और ये शॉर्ट नोट जो है, ये काफी आपको आपके सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्फिडेंस फील कराता है। सर इसमें जो सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रेटेजी है 1 मंथ पहले, वो ये है कि 1 मंथ पहले तक आपको स्टार्टिंग से ही आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, आपको फॉर्मूला शीट भी बनानी है, आपको पार्ट सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट भी देते चलना है। पर 1 मंथ पहले आपका जितना हो गया आपको वहीं पे रोक देना है। हाँ, उसके बाद फिर नया कुछ नहीं पढ़ना। करेक्ट। फिर नया कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपको रोज एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आपके शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट को देना है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पेपर को देना है, और फिक्स अमाउंट टाइम पेपर के रिव्यू को देना है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। तो ये जो 1 महीना अगर ये कर लेता है ना, क्योंकि सर सिलेबस बहुत बड़ा है और उस सिलेबस को याद रखना इंपॉर्टेंस है। मुश्किल कुछ नहीं है क्योंकि समझ में सब आ जाता है, क्वेश्चंस हो जाते हैं, लगभग सिमिलर सी चीजें हैं, लेकिन उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी हो पाता है जब आप कंटिन्यूअस रिविजन करते हो लास्ट के 1 महीने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जनरली आई आल्सो सजेस्ट इन माय क्लासेस कि बच्चों, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। लास्ट 1 मंथ में यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी ए न्यू सब्जेक्ट। आपने जितना पढ़ लिया दिसंबर तक या मिड ऑफ दिसंबर तक, वहां छोड़ दीजिए। जनवरी और मिड ऑफ दिसंबर टोटली आप दीजिए परफेक्ट रिवीजन को। अगर आपका सिलेबस 80% हुआ है तो मेक श्योर करिए कि वो 80% एटलीस्ट आप इतना रिवाइज कर लें, इतना पीवाईक्यूज को रिवाइज कर लें, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें, टेस्ट कर लें कि उस 80 मार्क्स में से आप एटलीस्ट 70 मार्क्स या 75 मार्क्स सिक्योर करें। क्योंकि गेट इज नॉट ऑल अबाउट अटेम्प्ट 100 अप टू 100। इवन अगर आपका पीआई में 4th रैंक आया है, तो इट डजंट मीन कि आपने पीआई का 100% सिलेबस कवर किया होगा। नहीं किया था सर, एक्चुअली मैं छोड़ गया था 10% के आसपास सिलेबस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। So very good. I'm very happy to discuss with you, Saket, because many pointers, whatever you have explained here, I am quite sure that it will be very much helpful for the upcoming GATE aspirants. Whatever your strategy, whatever your planning, that will definitely help for our future GATE aspirants. So my last question to you, Saket, what is your suggestion who will write the GATE exam in 24 and 25? What सर they should do, what they should not do, like yes. सर अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज ही से स्टार्ट कर दो, कल का इंतजार मत करो, आज ही से स्टार्ट कर दो एंड गेट कनेक्टेड विद समवन हु कैन गाइड यू टुवर्ड्स इट। क्योंकि बिना गुरु के किसी शिष्य की साधना पूरी नहीं हुई है। तो आपको एक
कहीं से एक्सपीरियंस जगह से आपको लेना पड़ेगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लीजिए अगर आप पॉसिबल नहीं है तो, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपर एकदम प्रॉपर 1 साल का शेड्यूल बना के, कोर्स बना के आप 1 साल पढ़ाई कीजिए, और जो भी शॉर्ट नोट्स है ये सब की तैयारी कीजिए, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1 साल प्रॉपर टाइम है, आज से अगले गेट तक बहुत टाइम है। आप अगर रोज 4-4 5-5 घंटे से भी शुरुआत करते हैं तो आप आराम से गेट कॉन्कर कर लेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि अगर आपको करना है तो आप आज से स्टार्ट करो, और अगर डाउट है, अगर नहीं करना तो छोड़ दो, कि ऐसा तो नहीं है कि गेट ही लास्ट ऑप्शन है लाइफ में। हाँ बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू राइट द गेट, और इफ अगर सोच लिया है कि देना है, देन यू आर नॉट सपोज्ड टू लेट। क्योंकि अगर आप अभी कंफ्यूज हो, फिर इन द मंथ ऑफ जून जुलाई आपको लगता है अब मेरे को करना है, तो थोड़ा सा आप उस समय के लिए लेट हो जाओगे, क्योंकि आप अपना सिलेबस फिर दिसंबर तक नहीं कंप्लीट कर पाओगे, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं 40 to 45 मार्क्स पे आके रुक जाओगे, तो आपका एक्चुअल पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ये साकेत ने जो पॉइंट बोला है, ये डेफिनेटली फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फ्रॉम ऑल द सक्सेस स्टोरी देयर आर लॉट्स ऑफ टेक अवे। सो एक सिंसियर स्टूडेंट जो यहाँ से लेके जा सकता है, एंड दैट इज द ओनली एजेंडा ऑफ द सक्सेस स्टोरी दैट वी आर प्रोवाइडिंग एट आवर एमएसगेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। So I hope it will be very much helpful for the upcoming aspirants. And thank you so much, Saket, for coming here. It's a proud Thank you so moment much. for us that you are our student and you have secured the All India rank 4. So many congratulations to you and your parents. सर थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन टू यू टू सर, आपकी मेहनत के हमारे से क्या होता है। Thank you, thank you. थैंक यू सर। So thank you to all of you, all of you who will watch this session on YouTube, and you guys can stay connected on our YouTube channel, because some more success videos about to come, and we are also planning to start a foundation series from 1st of April on our YouTube channel. So you will get some basic concepts. If you don't have some basic concepts of subject, you can have opportunity to make those concepts as your strength. Okay, so thank you. Bye bye. थैंक यू सो मच सर।